Hello everyone. So we are discussing about the animal kingdom. Now in this we are today going to discuss, or we are going to start with the phylum Ctenophora, right? These are also the comb jellies or the sea walnuts are the members of the Ctenophora. ठीक है? Now the grade of organization, right? It has a tissue level of organization. We all know that, right? Symmetry की बात करें तो it has a radial symmetry, means any plane passing through the central axis or the central point can divide the organism into two parts. Two germ layers are present, that is the ectoderm and the endoderm. Okay, and they are acoelomates, means there is no coelom present in them, no body cavity present in them. ठीक है. When we come to the habit and the habitat, they are exclusively marine. ठीक है, ये marine ही होते हैं. Okay, and they could be solitary and pelagic, right? Now the digestive system, it is again incomplete, मतलब के एक ही ओपनिंग. ठीक है, एंड द डाइजेशन कुड बी इंट्रासेल्युलर और द एक्स्ट्रा सेल्युलर, मतलब इनसाइड द सेल हो रहा है जैसे नॉर्मली होता है, या एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मतलब क्या हो रहा है, एंजाइम्स आर बीइंग रिलीज, राइट, और जो सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा. ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके बाद में फूड मटेरियल को एनगल्फ कर लिया जाएगा, राइट. Then comes the respiratory system. Respiration is absent in the phylum Ctenophora. Okay, circulatory system is also absent in the phylum Ctenophora, as it exhibits or as it has the cellular level of the organization. Reproduction, it only reproduces through the sexual mode of reproduction, and these are hermaphrodite, means male and फीमेल क्या होंगे, एक ही इंडिविजुअल में. ठीक है, दे परफॉर्म्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मीन्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट बिकॉज इट कंटेन्स, इट हैज अ लार्वा स्टेज. ओके, now the unique features, the locomotion is by 8 vertical rows of the ciliated comb plates. ठीक है, यूनिक फीचर इसका क्या है कि द लोकोमोशन अकर्स बाय द 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ द सीलिएटेड कॉम प्लेट्स. ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, दीज आर द कॉम प्लेट्स. ठीक है, एंड इट हैज व्हाट, सीलियाज ऑन इट, इट हैज सीलियाज. ये आपको ये क्लोजअप दिख रहा है इसमें कॉम प्लेट्स का. ठीक है, इट हैज सीलियाज ऑन इट. तो इस वजह से ये जो 8 रोज होती है, इस ये क्या कराते हैं, सीलियाज इसकी बॉडी को मूव कराता है. ठीक है, एंड द टेंटेकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इट, राइट. Now they have the ability to emit light from the body. This phenomenon is known as the bioluminescence. ठीक है, this phenomenon is known as the bioluminescence. ठीक है, ये सी जेलीज में और आपने कहीं बार डिस्कवरी ज्योग्राफी में देखा होगा कि ये क्या करती हैं, बायोल्यूमिनेसेंस को शो करती हैं. ठीक है, लाइट को क्या करती हैं, शो करती है, लाइट को इमिट करती है. ओके, now the examples are the pleurobrachia and the ctenoplana, right? Pleurobrachia and the ctenoplana. If we see it मतलब togetherly at this phylum, ठीक है, तो again the grades of organization is at the tissue level, the symmetry is radial, the germ layers are diploblastic, the coelom is not present, habit and habitat they are exclusively marine. ठीक है, digestive system में they have incomplete digestive system, right, and the digestion could be intracellular or
extracellular. ठीक है, the respiratory system is absent, the circulatory system is absent, okay, and the reproduction, they only reproduces by the sexual mean of reproduction. ठीक है, these are hermaphrodites, means they have males and female sex organs in the same individual, okay, and they perform external fertilization and the development is indirect, okay. Unique features are that they have 8 vertical rows, ठीक है, जिसको अपन of ciliated comb plates, ठीक है, ciliated comb plates and tentacles are also present. Tentacles हमने पिछले phylum में भी देखे थे, okay. Tentacles are also present and they show bioluminescence, means they emit light from their body, ठीक है. The examples are the Ctenoplana and the Pleurobrachia, ठीक है. ये इसमें स्पेशली याद करने वाली चीज तो आई गेस यही है यूनिक फीचर, बाकी निडेरिया टीनोफोरा में इतना एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, ओके. द नेक्स्ट फाइलम इज द प्लैटीहेलमिन्थेस, दैट इज ऑफ द फ्लैट वर्म्स, ठीक है, दैट इज ऑफ द फ्लैट वर्म्स. Now the grade of organization, first that we are going to discuss is the grade of organization. यहाँ पे आके जो grade है that has been changed from the tissue or the cellular level of organization से कहाँ आ गए हम, organ और organ system level पे, ठीक है, organ और organ system level पे, ठीक है. ये टेप वॉर्म वगैरह ये सारी चीजें शायद हमने कहीं ना कहीं देखी होंगी, ठीक है. तो दिस इज द फाइलम ऑफ द फ्लैट वर्म्स, ठीक है. टेप वर्म, प्लेनेरिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स, ओके. दे हैव द बायलेटरल सिमेट्री, मीन्स यू कैन सी, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इनका क्या था, ऑर्गेनिज्म था, ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब जब हमने इसको एक वर्टिकल प्लेन से एक वर्टिकल प्लेन को सेंट्रल एक्सिस से जब पास कराया, ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस है सपोज और ये क्या है हमारा वर्टिकल प्लेन है, जब हमने इसको इससे पास कराया तो इट डिवाइडेड इट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है. इसी को क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री. क्या अगर मैं इसको एक वर्टिकल प्लेन से डिवाइड कर दूं विच इज पासिंग थ्रू अ सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल द बायलेटरल सिमेट्री. नाउ व्हेन वी कम टू द जर्मिनल लेयर्स, प्लैटीहेलमिन्थेस से क्या हो जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है दे स्टार्ट्स टू हैव द 3 germ layers, ठीक है, दैट इज द एक्टोडर्म, द मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म, ठीक है. तो दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक है. दे हैव 3 germinal layers, दैट इज द एक्टोडर्म, द मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म, ठीक है. You can see it over here, this diagram is also been given, ठीक है. This is the body covering, ठीक है, जो कि क्या बनी है, एक्टोडर्म से बनी हुई है, ठीक है. This is the digestive tract that is present inside, which is derived from the endoderm, and this is the tissue filled region formed by the mesoderm, ठीक है. तो तीनों ही germinal layers क्या हैं, present है यहाँ पे, ठीक है. These are acoelomate. अभी आपने देखा ना कि जहाँ मीजो ये सारा क्या था, फिल्ड अप था सारा स्पेस, यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, तो these are also acoelomates, ठीक है. Now the habit and the habitat, these are mainly aquatic, ठीक है, these are mainly aquatic, okay. और उसमें भी क्या हो जाएंगे, these can be endo पैरासाइट्स, ठीक है. पैरासाइट्स मैंने बताया था पहले भी कि पैरासाइट्स आर बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या करते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन या अपने रिप्रोडक्शन या अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए क्या होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है. उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है. Again, these could be of 2 types, ectoparasites and the endoparasites. Ectoparasites are the one that lives on the host body, on outside of the host body, like this, on my hand maybe, okay.
तो जो यहाँ पे चिपके हुए हैं वो क्या है, एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के सरफेस पे चिपके हुए हैं। लेकिन वो पैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर किसी ऑर्गन में प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स, मींस इनसाइड द बॉडी, एंडो मींस इनसाइड, ठीक है, एंड सम कुड बी फ्री लिविंग ऑल्सो। Now, the digestive system is again incomplete, ठीक है, it only has a single opening, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, दोनों की तरह एक्ट करेगा एज अ माउथ एज वेल एज एट द एनस, ठीक है। तो ये जो सिंगल ओपनिंग है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज ओनली एक्टिंग एज द माउथ एंड द एनस, इसलिए इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। Now the respiratory system is absent, ठीक है, respiratory system is absent in these, and circulatory system is also absent, ठीक है। Now we come to the reproduction, okay, now they reproduce by the asexual means, ठीक है, and asexual may be fragmentation, okay, you can see the fragmentation, this is a planaria, ओके यहाँ पे ये क्या हुए, फ्रेगमेंट्स में अलग अलग डिवाइड हुए, ठीक है, और हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, डेवलप हो गया, ठीक है, हर एक फ्रेगमेंट एक नए ऑर्गेनिज्म में क्या हो गया, डेवलप हो गया, यू कैन सी दिस, राइट। तो दिस इज बेसिकली द फ्रेगमेंटेशन, ओके, एंड it also reproduces by the sexual means, ठीक है, it also reproduces by the sexual means. These are also hermaphrodites, okay, and the fertilization is internal, means inside the body. Development is indirect, means it has a larva stage present, ठीक है, and it has many larva stage present, okay. Now the unique features are that these have unsegmented dorsoventrally flattened body, ठीक है, अनसेगमेंटेड, इनका कोई सेगमेंट नहीं होता। जो टेप वॉर्म्स हैं, ठीक है, जो टेप वॉर्म्स है उनकी बॉडी आप देख सकते हो कि थोड़ी सेगमेंटेड है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अनसेगमेंटेड डोर्सोवेंट्रली मतलब आगे पीछे, डोर्सल मतलब पीछे वाला साइड, बैक साइड, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, तो डोर्सोवेंट्रली इनकी क्या होती है, बिल्कुल फ्लैटेंड बॉडी होती है, ठीक है। लेकिन इसका एक्सेप्शन कौन है, टेप वॉर्म्स, इनका एक्सेप्शन कौन है, टेप वॉर्म्स, ठीक है। नाउ ये चीज़ जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ी थी तो मैंने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये ज़रूर बताया था कि जो सारे फाइलम्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, दीज आर द फ्लेम सेल्स, ठीक है, या अपन उनको क्या बोलते हैं, और प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है दैट इज द flame cells, or we can also call them the proto, or they are also known as the protonephridia, ठीक है। Suppose this is the organism, right, and this is the excretory canal. These minute canals are the excretory canals. You can see this, right, ये बड़ा किया हुआ जूम इन किया हुआ डायग्राम है, ठीक है। तो these are the excretory canals, okay, और उसमें these cells are the flame cells. Actually let's see it here. This is basically a structure of the flame cell, ठीक है। It helps in the excretory या process, ठीक है, it helps in the excretory process, ठीक है। Now they have the presence of hooks and suckers in parasitic form, ठीक है। ये जो hooks होते हैं, ठीक है, ये hooks we all know how does a hook look, right, हुक हो गए, सक्कर्स हो गए, ठीक है। सक्शंस आपने कभी देखे होंगे, वो ऐसे ठप करके, जो सक्कर्स बेसिकली यहाँ पे तो जो ब्लड है, ठीक है, उसको सक करने के लिए है, दीज आर द सक्कर्स, ठीक है, ये आपको दिख रहे हो तो, एंड दीज आर द हुक्स, दीज आर द हुक्स, ठीक है। तो ये जो हुक्स और सक्कर्स है, दीज आर बेसिकली फॉर द एब्जॉर्बिंग द
न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी. ठीक है, ये जो सक्कर है दिस इज बेसिकली फॉर एब्जॉर्बिंग द होस्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी. और ये जो हुक है दे हेल्प इन अटैचमेंट टू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, वो क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है उस ऑर्गेनिज्म को टू द होस्ट ऑर्गेनिजम्स बॉडी. ठीक है, सम एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस. ठीक है, मतलब एक्टोपैरासाइट है तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी के सरफेस के ऊपर उससे अटैच होके क्या करेगा, उससे अपना न्यूट्रिशन लेगा. ठीक है, तो उन पैरासाइट्स को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट्स. एंड इफ दे आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इटसेल्फ देन दे आर नोन एज द एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, नाउ द एग्जांपल ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस इज द टीनिया सोलियम. ठीक है, दैट इज द पोर्क टेप वर्म. ओके, fasciola that is the liver fluke and the planaria. ठीक है, तो these are the examples. Again, let's take a quick recap. The grade of organization that is present is the organ and organ system level. ठीक है, the symmetry that is present is the bilateral symmetry. The germ layers are 3. ठीक है, एक्टो, एंडो और मीजो क्या है, तीनों ही प्रेजेंट है वहां पे. ठीक है, एंड सिलोम इज नॉट प्रेजेंट इन देम. सिलोम इज नॉट प्रेजेंट इन देम. हैबिट एंड हैबिटेट की बात करें तो दीज आर मोस्टली एक्वेटिक. ठीक है, एंड दीज आर एंडोपैरासाइट्स. ठीक है, एंडोपैरासाइट्स मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन या लाइफ साइकिल के लिए. ठीक है, एंड सम आर फ्री लिविंग ऑल्सो. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट मीन्स दे ओनली हैव वन ओपनिंग विच एक्ट्स एज द माउथ एज वेल एज द एनस. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट. ठीक है, रिप्रोडक्शन is they reproduce by the asexual means through the fragmentation. ठीक है, and also by the sexual means. ठीक है, hermaphrodites, these are the hermaphrodites. Okay, the internal fertilization takes place, the development is indirect with many larval stages. ठीक है, the unique features are that they are unsegmented. Okay, and they are flat, they have a flattened body dorso ventrally except the tapeworms. ठीक है, the excretion occurs by the flame cells or the protonephridia. ठीक है, the parasites have the hooks and the suckers which absorb the nutrition from the host organism's body. Okay, and the examples are the Taenia solium. Okay, the fasciola and the planaria. Okay, these are the structures. This is the flame cell, right? The excretory duct. We don't need to go into the detail, so let's leave it here only, है ना? Okay, the next phylum is the phylum Aschelminthes. ठीक है, these are the roundworms. These roundworms causes many diseases. ठीक है, these are really disease causing organisms. Now the grade of organization that is present is the organ system level. ठीक है, इन यहाँ तक आते आते क्या हो गया है, ऑर्गन सिस्टम तक पहुँच गया मामला. ये जो राउंड वर्म्स होते हैं, आई टेल यू पीपल के ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में कितने कितने टाइम तक जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. ठीक है, ओके, सो इनके एग्जाम्पल क्या है, हुकवर्म है एंड एस्कैरिस है. ठीक है, हुकवर्म एंड द एस्कैरिस. ठीक है, द सिमेट्री दैट इज प्रेजेंट इज द बायलेटरल सिमेट्री. ओके, सी loa, this is the eye worm, this is present in the eye of the organism. I have told you कि ये बहुत खराब होते हैं बेसिकली, राइट, ऑर्गेनिजम्स के लिए. कि ह्यूमंस में भी ये जहाँ भी जाके आपने ये चीज़ें बहुत जगह देखी होगी, मे बी ऑन द इंस्टाग्राम्स और द डिस्कवरी और द जोग्राफी, कि दीज वीडियोज आर अवेलेबल ओवर देयर, राइट. कि ये जो वर्म्स हैं वो
ह्यूमन बॉडी में जाके बैठ ही जाता है, ठीक है. तो यू कैन सी दिस लोआ, दिस इज अ वर्म प्रेजेंट इन द आई, ठीक है, एंड दिस इज अ फिलेरियल वर्म. Now the germinal layers that are present are all three of them, the ectoderm, the mesoderm and the endoderm, ठीक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तीनों ही क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है. Now these are pseudocoelomate, ठीक है. These are pseudocoelomate means they have a false septum, they have a false septum, के कैविटी है भी और नहीं भी है, ठीक है. So they have a these are the pseudocoelomate animals, ठीक है, organism, and these have a false coelom, ठीक है. Now the habitat and habit, these are aquatic and टेरेस्ट्रियल, मतलब पानी में भी रहते हैं और बिना पानी के जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है. एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही हैबिटेट में दे लिव. Okay, these could be free living or parasitic in plants and animals. free living भी हो सकते हैं, ठीक है, कि किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है. दिस इज एक्वेटिक फ्री लिविंग फॉर्म्स, ठीक है. This is ascaris present inside the intestine of the organism. You can see ये intestine में काफ़ी सारी problems को cause करता है. That in the previous slide you saw that a worm was present inside the eye of the human, right? और इसमें यहाँ पे देखो the ascaris is present inside the intestine of the human. Okay, कितना बड़ा है ये, and literally इतने बड़े बड़े worms निकलते हैं उसमें से, ठीक है. एंड दिस इज अगेन अ फ्री लिविंग. इतने नाम ये सब याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर सम नेम्स एटलीस्ट, ठीक है, जो स्पेसिफिक हैं, ठीक है, वो याद रखो. ये सब याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इवन आई डोंट रिमेंबर दिस मच ऑफ नेम्स. जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखो. ओके, नाउ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है. द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. ये यहाँ पे जाके एस्की हेलमिंथेस पे जाके क्या हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है, ठीक है. मतलब इट हैज बोथ माउथ एंड अ एनस, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट है, माउथ एंड अ एनस, ठीक है. यू कैन सी दिस इज द माउथ, ठीक है, दिस इज द माउथ एंड दिस इज द एनस, के मतलब बीच में पूरी कैनाल है या पूरा सिस्टम है, ठीक है. और उसके बाद माउथ से इंजेक्शन होके एनस से क्या हो जाएगा, बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है. नाउ इट हैज अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, एंड हैव अ ट्यूब्यूलर एलिमेंट्री कैनाल विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर pharynx, ठीक है. You can see this is a tubular alimentary canal, right? This is a tubular alimentary canal, okay, and these have a well developed muscular pharynx. These have a well developed muscular pharynx. और ये जो येलो ट्यूब यहाँ से जा रही है, this is basically the reproductive part वाला, ठीक है. These are, this is the ovary, ठीक है, this part is the ovary and this is the reproductive पोर, ठीक है, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पोर. और ये यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी पोर है, जहां से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है. नाउ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, ओके. द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट. द रिप्रोडक्शन अकर्स by the sexual means, ठीक है. The reproduction occurs by the sexual means and these are dioecious animals, ठीक है. These are dioecious. Generally monoecious और dioecious हम plants में ज़्यादा यूज करते हैं, but ठीक है, these are dioecious organisms, ठीक है. मतलब दोनों sexes क्या है, separate है. One is मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा या फीमेल होगा. दीज आर नॉट हर्मेफ्रोडाइट्स के जिसमें मेल्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट है. नो, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा. ईदर इट विल बी फीमेल और इट वुड बी मेल्स, ठीक है. नाउ दीज आर द डाइशियस ऑर्गेनिजम्स एंड द सेक्सेस आर सेपरेट, ठीक है. दीज रिप्रोड्यूसेस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and internal fertilization
टेक्स प्लेस, ठीक है। द डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों ही हो सकता है। लार्वा स्टेज प्रेजेंट भी हो सकती है और लार्वा स्टेज प्रेजेंट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, पॉसिबल है। ओके, ये तो कुछ बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं, ठीक है। आप सिंपल डायग्राम्स को समझने की कोशिश करो। हमने जो पहला डायग्राम देखा था, दैट इज यू जस्ट ड्रॉ this outline, okay, and you draw this elementary canal, a tubular structure, okay, and you add the ovary wala part, the excretory pore, the this reproductive pore, ठीक है। ये सब क्या करता है, रिप्रोडक्टिव पोर, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मतलब जो रिप्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है, ठीक है, स्पर्म्स निकालने में या जो भी है, ठीक है। तो वो इन स्ट्रक्चर्स में, इन फंक्शंस में हेल्प करता है। और एक्सक्रीटरी पोर है जो एक्सक्रीशन में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल अपन डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी कम टू द यूनिक फीचर, ठीक है, द बॉडी इज सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, वी कैन सी, ठीक है, इट इज सर्कुलर इन द क्रॉस सेक्शन, ओके, एंड इट इज सिंक्टियल, ठीक है, इट इज सिंक्टियल। ये अपन ये आगे सिंक्टियम भी आगे अपन नाम सुनेंगे, दैट मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। जहां भी ये वर्ड हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। तो दीज हैव अ मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस, ठीक है, these have a multinucleate epidermis, that is the outer layer is having multiple nucleuses and it has a thick cuticle, ठीक है, and it has a thick cuticle, okay। so this is basically the section of the body wall of the Aschelminthes, or more specifically this is the section of the Ascaris, ठीक है। अगेन इतना मतलब वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट दिस इज बेसिकली द लिपिड लेयर, द आउटर लेयर इज द लिपिड लेयर, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दैट, द आउटर लेयर इज द लिपिड लेयर, ठीक है। उसके बाद देन कम्स द क्यूटिकल पार्ट, ठीक है, देन कम्स द एपिडर्मिस एंड देन कम्स द अदर पार्ट्स, ठीक है। इतना उसको डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये सब आपसे पूछा जाएगा नहीं वैसे, ठीक है। लेकिन एज यू कैन सी द क्यूटिकल पार्ट इज वेरी थिक, दिस मच पार्ट इज वेरी थिक, ठीक है। नाउ द यूनिक फीचर्स, ठीक है, दे हैव एन एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव बॉडी वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। ये जो है, ये जो एक्सक्रीशन है वो किसके थ्रू कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू। और इनके पास क्या होती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, सो दैट दे कैन एक्सक्रीट द वेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। यू कैन सी दिस इज द एक्सक्रीटरी ट्यूब, ठीक है, दिस इज द एक्सक्रीटरी ट्यूब जो कि क्या कर रही है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। Now they show sexual dimorphism, ठीक है, they show sexual dimorphism, मतलब मेल्स और फीमेल्स के बीच में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स के बीच में मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, द फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, ठीक है, द फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, ठीक है। इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। डायमॉर्फिज्म मतलब दो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, ठीक है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, दो तरह की मॉर्फोलॉजी बता रही है ये, मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग। जैसे कि क्या, कि फीमेल्स जो होती है दीज आर लॉन्गर देन द मेल्स, ठीक है। नाउ द एग्जांपल्स आर द एस्कैरिस, द हुकवर्म, the ankylostoma, the wucheria or the filarial worm. If you remember again, अगर आपने कहीं देखा हो कि एलिफेंटाइसिस एक बीमारी होती है, ठीक है, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो हाथ पैर या इवन जेनाइटल रीजन क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस एलिफेंटाइसिस इज कॉज्ड बाय दिस फिलेरियल वर्म, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस
these Aschelminthis phylum. ठीक है. Now the grades of organization. Okay, again recap time. Okay, the grades of organization, they have a organ system type level of the organization. ठीक है. They have bilateral symmetry, they have 3 germ layers, that is they are triploblastic animals. ठीक है. They have a false coelom present. ठीक है. They have a false coelom present. These are aquatic and as well as टेरेस्ट्रियल. ठीक है. पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रहते हैं. ठीक है. These could be free living or could be parasitic. ठीक है. Now the digestive system is complete, means they have a mouth and a anus. ठीक है. They have a mouth and a anus. Okay. The respiratory and the circulatory system are absent. Now the reproduction part पे जब हम आए, they reproduces by the sexual means. Okay, and these are dioecious animals, means they have male and female sex organs in the different individuals. ठीक है. Now they have internal fertilization, means the fertilization takes place inside the body of the organism. ठीक है. The development could be direct or indirect. ठीक है. Now the unique features are the cinctial epidermis, the thick cuticle, an excretory tube to remove the body waste through the excretory pore, and sexual dimorphism, means the both the sexes, the males and the females, shows different morphism or the different structure of the body. ठीक है. Example, the females are longer than the males. ठीक है. The examples are Ascaris, Wucheria, that is the filarial worm, right, and the ankylostoma. ठीक है. So these are the, मतलब this is basically the phylum Aschelminthis. ठीक है. The next we are going to discuss, मतलब that's it for the today's class. ठीक है, वरना ज़्यादा हो जाएगा. The next we are going to discuss in the next class. ठीक है. Thank you.